Okay, good morning everyone. I hope you guys are doing good. So as you know, SBI का notification आ गया है, okay, for clerk, and very good vacancies are there, okay, and we have seen not only in clerk, अभी PO में जो आपका what you say pattern आया है उसके हिसाब से they have given more weightage for English, okay. Clerk का pattern is same only, okay, 30 marks in prelims और mains में जैसा था वैसा ही है, but for PO it has changed, okay. Even though what you say it is the same pattern, but I would say English is one deciding factor which is a difference between you getting the job and not getting the job. आपको job मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको decide करने वाला factor English रहता है, okay. Because with practice बहुत सारे लोगों का with practice what you say quants and logical हो जाता है, okay. But English is one typical thing जो इतना इजी नहीं है स्कोर करने के लिए until and unless you are very good with the concepts, okay. तो आपका concepts बहुत strong रहना चाहिए. So what I have thought of is मैं एक वीडियो सीरीज करूंगा that is exclusively for SBI Clerk, okay. And I have divided this course into 7 parts. इसको 7 parts में मैंने divide किया है, okay. And as you know for SBI Clerk, okay, what are all the questions do you get? You get questions that are based on which are based on errors, okay, error detection पे आपको questions आते हैं. You get questions that are based on RC, reading comprehension के ऊपर questions आते हैं. You get questions based on parajumbles, okay, and you get questions that are based on close test or I would say filling the blanks, okay. तो ये pattern में आते हैं. Some of the miscellaneous questions also you would get where they ask you कि इसमें से सही statement कौन सा है, which is the right statement in that, or replace the word, which will all come under errors. मतलब the pattern would be the same, okay. Or I would want to say that is based on grammar. Grammar के ऊपर रहेगा, okay. Right now, reading comprehension is purely on your reading skills, okay. जो हम लोग discuss करेंगे, not that we cannot learn it quickly. हम लोग जल्दी सीख सकते हैं. Actually reading comprehension is a very easy topic. हम लोग बहुत जल्दी सीख सकते हैं and it's a very high scoring topic, okay. And what about parajumbles? ये तो हो जाएगा, okay. And filling the blanks हम लोग ये सब solve करेंगे, okay. We will solve all this but we will do it one by one, okay. So we will start with grammar actually, और grammar में the main topic if I have to think of that would be errors, okay. और errors is that kind of a topic where you get around 6 to 8 questions, okay. 6 to 8 questions रहेगा which is almost 30% of the weightage. weightage का 30% है and this is a deciding factor, okay. ये deciding factor होता है because most of the people who are very good with English also उनको पता नहीं है कि उनका questions right था या गलत, okay. It is that kind of a topic. तो इसमें आपको बहुत sure होना पड़ेगा, okay. Let's see. तो हम लोग क्या करने वाले हैं? What I am going to do is first of all okay, so this is a memory based questions for the last year 2023 में जो questions आए थे that is on what you say error detection, वो questions है, okay. तो इसको पहले हम लोग एक बार decode करते हैं कि ये क्या है, मतलब इसके answers क्या होने चाहिए and what you say based on that हमें क्या पढ़ना चाहिए, okay. So if I just try to decode this one, अभी देखो, each of the students in the class, the first one, okay, each of the students in the class were eager to participate in the competition. यहाँ पे each of the students बोला है, okay, that means it is singular, okay. ये singular है, तो अगर ये singular है तो I cannot have were here, okay, it should be was, सही है. So what kind of a question is this? Now I am not discussing the questions here, I am just trying to decode कि कैसे questions आए थे. So what kind of a question this is? This is a question which is based on subject verb agreement. Subject verb agreement के ऊपर ये question है, okay. Now if you see the second question, the number of applicants, okay, if it was just applicants I would say it is plural, ये plural है, okay. But this applicant को एक नाम दिया गया है which they told the number of applicants. Now applicants is plural but number of applicants is not plural. अभी ये singular बन गया है, this became singular, okay. And if this is singular then यहाँ पे हमको R नहीं आना चाहिए, it should be is,
Okay, that is the error here. Again, it is a subject verb agreement. ये भी subject verb agreement ही है. Okay, so दो क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से आए. नेक्स्ट, नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स. नाउ व्हेन आई एम सेइंग नीदर और एदर, ओके, तो इसका मतलब होता है, मतलब दो में से एक और दो में से कोई भी नहीं. तो दिस ऑल्सो मस्ट बी कंसिडर्ड टू बी व्हाट यू से सिंगुलर ओनली. ओके, तो इन दैट केस इफ दिस इज सिंगुलर, यहाँ पे हैव नहीं आएगा, इट शुड बी हैज. राइट. नाउ सरप्राइजिंग इज, ये भी आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से ही क्वेश्चन आया है. ओके, व्हाट अबाउट द फोर्थ वन? अमंग द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय द टीम, द लैक ऑफ रिसोर्सेस were the most significant one. Among the various challenges faced by the team, बहुत सारे challenges है टीम के लिए. Okay, the lack of resources, out of those number of challenges, lack of resources is one of the challenge. That means this is singular. ये एक singular है. Okay, were the most significant. यहाँ पे were नहीं आएगा, यहाँ पे definitely was आएगा. Right. Now this is also based on subject verb agreement only. हमारा 6 questions में से 4 questions सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से ही आया है. ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस वन? नाउ मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, नॉट बिकॉज आई एम टीचिंग दिस. मैं आपको ये क्वेश्चन सिखाने नहीं आया हूँ, मैं आपको आज ये बताने आया हूँ कि व्हाट इज एक्चुअल पैटर्न में कौन से क्वेश्चंस आते हैं. ऑन दैट वी विल लर्न कॉन्सेप्ट फर्स्ट. हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं. ओके, फिफ्थ वन, अरमान हैज कंप्लीटेड द होमवर्क लास्ट नाइट वाइल वॉचिंग टीवी. ओके, यहाँ पे अरमान हैज दिया है, यहाँ पे हैज नहीं आएगा. ओके, इट शुड बी अरमान कंप्लीटेड द होमवर्क लास्ट नाइट वाइल वॉचिंग द टीवी. दिस इज बेस्ड ऑन टेंसेस, ये टेंसेस के ऊपर बेस्ड है. ओके, नाउ इसका आंसर आपको बाद में पता चलेगा कि क्यों ऐसे है. ओके, वही हैज शुड नॉट बी हियर, क्यों नहीं रहना चाहिए. ओके, नेक्स्ट वन, आई एम टेकिंग केयर ऑफ द हाउस सिंस माई फादर्स डिमाइस. ओके, I am taking care of the house since my father's demise. Okay, all right. तो यहाँ पे I am नहीं आएगा, यहाँ पे I have been आएगा. Taking care of the house since my father's demise. Okay. Now this is also based on tenses. Now ये ऐसे क्यों आएगा हम लोग बात करेंगे. ओके, वी विल टॉक अबाउट दिस कि ऐसे क्यों आएगा. मैं ये क्वेश्चन सिखाने के लिए आपको नहीं आया हूँ, बट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स. सो द 2 concepts that are important for error detection. Okay, I would say 95% of the questions on error detection यहीं से आते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग दूसरा नहीं पढ़ेंगे, बट वी विल गिव प्रायोरिटी टू दिस वन. हम लोग इसको प्रायोरिटी पहले देंगे, बाकी चीजें भी थोड़ा थोड़ा हम लोग देख सकते हैं, बट दिस शुड बी लर्न परफेक्टली सो दैट आपको ये 90% ऑफ द मार्क्स यू शुड बी एबल टू गेट. ओके, नाउ 2 topics we have found ki it is very important. One of them is subject verb agreement, okay, and one of them is tenses. Tenses और subject verb agreement में से बहुत सारे questions आते हैं. So today we will learn one of the topic, okay. और आज हम लोग tenses खत्म करते हैं. We will complete tenses today. After today you will not have any doubt in tenses. आपको tenses के ऊपर कोई doubt नहीं रहेगा. Okay, right. Let's see. Now, when we talk about tenses, okay, अभी when you have learnt it in your primary sections, tenses के लिए एक box बनाया था where they said this is past, present and future tense, and there were 4 sections like simple present, okay, past perfect, continuous, okay, ऐसे सब दिया था. Okay, we will not do it in that way क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है. There is no use for that. You will not be able to understand it properly. Okay, तो हम लोग क्या करने वाले? We will understand what are these tenses. Okay, one by one हम लोग ये tenses देखते हैं. Okay, इसका ये पैटर्न नहीं है कि मेरे को सिंपल पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस से ही स्टार्ट करना है, ये जरूरत नहीं है. We will see in what way we can learn. Okay, now let's say I am giving a simple statement. एक simple statement दे रहा हूँ. Okay, let's say I go to my friend and tell him that I went to the movie. Okay, मैं एक मूवी को गया था. Now you guys have to understand कि ये statement सही था कि गलत था. Okay, and most of you would be surprised if I tell you that this is a wrong statement. If I write I went to the movie. Okay,
तो बहुत सारे लोगों को तो लगेगा कि ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें कोई गलत तो होना नहीं चाहिए, ओके, बट दिस इज अ सिंपल पास्ट टेंस, ओके, और ये स्टेटमेंट गलत है. व्हाई इट इज रॉन्ग? बिकॉज द रूल सेज, ओके, ये क्यों रूल है आपको समझ में आ जाएगा बाद में, ओके. द रूल सेज व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंपल पास्ट टेंस, अगर कुछ हुआ था पास्ट में, ओके, इफ एनीथिंग हैज हैपेंड इन द पास्ट एंड यू वांट टू टेल दैट समथिंग हैज हैपेंड इन द पास्ट, यू शुड गिव द टाइम रेफरेंस. आपको टाइम भी बताना है कि ये कब हुआ था, अदरवाइज इट इज नॉट रिलेवेंट ओनली. अगर मैं सडनली आ जाऊं और बोलूं कि मैं पिक्चर को गया था, कब गए थे, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. सो इफ आई राइट दिस स्टेटमेंट वेयर इट इज अ सिंपल पास्ट टेंस विदाउट एनी टाइम रेफरेंस, ये एक स्टेटमेंट है जो गलत हो जाएगा. दिस इज अ स्टेटमेंट विच विल गो रॉन्ग, ओके. तो वी आर नॉट गोइंग टू यूज, ओके. अब इसको सही कैसे बना सकते हैं, ओके, हाउ कैन आई मेक इट राइट? I can make it right by giving a time reference. I can say, I went to the movie yesterday. I went to the movie yesterday. Now this will make it right. Or the last week. ऐसा कुछ हम लोग बता सकते हैं. So without time reference, you cannot write a simple past tense, a statement in simple past tense. आप नहीं लिख सकते. Okay, that is a rule. क्योंकि आपको time बताना है. Definitely you have to tell the time. Okay. Now, is there any way? यही से आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, ओके. फ्रॉम हियर ओनली द कॉन्सेप्ट वुड स्टार्ट कि इज देयर एनी वे, आई डोंट वांट टू टेल द टाइम, मेरे को टाइम बताना नहीं, ओके, बट आई स्टिल वांट टू, ओके, टेल व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट. आई डोंट वांट टू टेल द टाइम, लेकिन मैं पास्ट में क्या हुआ मैं ये बताना चाहता हूँ. देन आई वुड से, आई विल राइट माई स्टेटमेंट लाइक दिस. आई वुड से, आई हैव गॉन टू द मूवी. This is a right statement. Okay. यहाँ पे भी I am telling the same statement only, मतलब the same information only. यहाँ पे भी वही information है, मैं मूवी को गया था. यहाँ पे भी वही information है, मैं मूवी को गया था. Right? But here, okay, ये statement सही हो गया, ये statement गलत हो गया. Okay. Why? Because यहाँ पे हम लोगों ने have gone use किया है, and from here only you will know the usage of, okay, the usage of have, has, and had. Okay, if you understand the usage of have, has and had properly, आपको पूरा टेंस आ जाएगा. ओके, टेंसेस का आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा इफ यू नो सॉरी इफ यू नो दिस थ्री वर्ड्स. ओके, इनका मीनिंग पता चले, इनका यूसेज पता चले, ओ व्हाट आर द डिफरेंट यूसेजेस, देन यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड, ओके, व्हाट इज टेंसेस, राइट. ठीक है. नाउ इसका यूसेज क्या है? इसका फर्स्ट यूसेज ये है कि these are the words which are called auxiliary verbs. Okay, इनको हम auxiliary verbs बोलते हैं, नहीं तो helping verb बोल सकते हैं. Okay, auxiliary verbs बोलते हैं. And what is its usage? The first usage is it acts like a tense. Okay, ये किसी भी एक verb को जिसका tense नहीं है उसको टेंस देते हैं. मे बी यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग, लेकिन आपको अभी समझ में आएगा. सो आप ये यूसेज समझ लो. व्हाट इज द यूसेज ऑफ हैव, हैज एंड हैड? इट इज द वन विच प्रोवाइड्स द टेंस. ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, फॉर एग्जांपल ये निकाल दो. ओके, ये हैव यहां से निकाल दो एंड देन यू रीड द स्टेटमेंट. ओके, यू रीड द स्टेटमेंट विदाउट हैविंग हैव. आई गॉन टू द मूवी, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. सही है. ये रॉन्ग इसीलिए है बिकॉज this particular one doesn't have a tense. ये statement को tense नहीं है. It doesn't have a tense. इसको tense provide किया है by using have. So the usage of have, has and had is to provide tense. मैं और भी आपको ये अच्छे से समझ में आने जैसा ट्राई करूंगा. ओके, तो आप लोग इसको अच्छे से समझो. ओके, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स रहता है. ओके, मोस्ट व्हाट यू से अच्छे से अगर हम लोग करें तो 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. ओके, विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. आई एम नॉट गोइंग इनटू टू मच ग्रामर. ओके, ये थर्ड पर्सन प्लस आईएनजी ये सब मेरे को करना नहीं है, बट आई एम गोइंग टू व्हाट यू से मेक इट वेरी लॉजिकल. देखो, 3 टाइप्स ऑफ वर्ब रहेगा विच इज V1, V2 एंड V3. ओके, नेक्स्ट V1 अगर मैं गो ले रहा हूं, V2 वेंट है एंड दिस इज गॉन. ओके, this everyone understand? V1, V2, V3, these are the 3 forms of the verb. ये 3 फॉर्म है verb का, right? Now
where go is a present form of the verb. Okay, this is a past form of the verb. Went is a past form of the verb, and this is past participle. What do you mean by past participle? मतलब past participle का ये मतलब है that this is not past. Okay, ये past नहीं है लेकिन past बन सकता है. It is not past but it can become past. Okay, how can it become past? इसका tense कैसे आएगा? By giving the help. इसीलिए whenever I use gone, okay, V3 form basically, जब भी मैं V3 form use करूंगा उसके साथ एक helping verb definitely होगा, which would be have, has and had. ये तीनों में से एक वर्ब मेरे को टेंस मेरे को डेफिनेटली यूज करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द वन विच इज गोइंग टू प्रोवाइड टेंस टू दिस पर्टिकुलर वर्ब. इस वर्ब के पास कोई टेंस नहीं है. दिस इज अ प्रेजेंट टेंस, दिस इज अ पास्ट टेंस, बट दिस वन डजंट हैव एनी टेंस. इसको टेंस बना सकते हैं बाय गिविंग अ हेल्प ऑफ हैव, हैज एंड हैड. ओके, जस्ट एन एग्जांपल जो मैंने पहले दिया था, आई हैव गॉन to the movie. I have gone to the movie. For example, मैं यहाँ पे have निकाल दूँ, okay, और इसको अभी पढ़ेंगे तो I gone to the movie, there is no meaning to it because there is no tense. यहाँ पे tense नहीं है. तो इस particular V3 को definitely tense चाहिए. Okay, इसको tense चाहिए because इसके पास अपना tense नहीं है. It doesn't have its own tense. तो this is not past, this is past participle. मतलब ये बन सकता है, okay, लेकिन इसको हेल्प चाहिए डेफिनेटली. ओके, बट इफ आई टॉक अबाउट प्रेजेंट एंड पास्ट, ओके, अगर मैं ये देखूं, ओके, तो इसको कोई टेंस का जरूरत नहीं है. इफ आई से आई गो टू द मूवी, ओके, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो इसके लिए कोई भी टेंस का जरूरत नहीं है बिकॉज इट हैज इट्स ओन टेंस. अगर मैं यहाँ पे इसको कुछ अटैच करूं, लेट्स से आई एम अटैचिंग हैव. आई हैव गो टू द मूवी इज रॉन्ग. I has go to the movie, I had go to the movie, it doesn't make any sense. Okay, ये past भी एक बार देखते हैं. I went to the movie. Okay, of course I cannot write it this way as I told you because there should be a time reference. मैं लिख देता हूँ yesterday. I went to the movie yesterday. इसके साथ हमको कोई भी what you say help का जरूरत नहीं है. If I put have here, I have went to the movie, there is no sense at all. Okay, so you can understand here that why am I using have, has and had. अगर मैं actually ये have, has and had को क्यों यूज कर रहा हूँ? मैं first thing इसको इसलिए यूज कर रहा हूँ because these are like the helping verb, और ये एक tense देता है verb के लिए. Okay, for the verb it gives a tense. That is the most important thing. Okay, now what is the other thing which I can understand? I can say I will use have, has and had along with V3 form. Okay, हमेशा only with V3 form I have to use. ये V1 और V2 के साथ use नहीं करना है, जरूरत ही नहीं. There is no necessity only. I will use this have, has and had along with V3 form. Okay, why will I use it? To tell something which has happened in the past and I don't want to give the time reference. Okay, I don't want to give the time reference. Like here, यहाँ पे मैंने ये बताया कि मैं मूवी को गया था. दिस हैज हैपेंड इन द पास्ट एंड दिस वाज आल्सो हैपेंड इन द पास्ट. ये भी पास्ट में ही हुआ था. द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज यहाँ पे टाइम रेफरेंस दिया है, यहाँ पे टाइम रेफरेंस नहीं दिया है. हियर देयर इज अ टाइम रेफरेंस एंड हियर देयर इज नो टाइम रेफरेंस. दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू. ओके, आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस वन. ओके, तो हैव क्यों यूज करते? टू टेल समथिंग विच हैज हैपेंड इन द पास्ट. पास्ट में कुछ हुआ था. Okay, but what you say, I don't want to tell when. कब हुआ था ये मैं बताना नहीं चाहता. Okay, now but with this have, has and had मैं थोड़ा बहुत hint तो दे रहा हूँ. Okay, because if I am saying have, that means there is some connection to the present. Okay, ये आपको समझ में आएगा. If I am saying has, there is some connection to the present. But if I am saying had, there is some connection or something which has happened in the past and there is no connection to the present. ये चीजें थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा from this one. Okay, because this word will tell, okay, is there any connection to the present or there is no connection to the present. Okay, ये इसलिए यूज किया जाएगा. Okay, I hope you guys have understood what I am trying to tell here.
सो इन अ सिंपल टर्म्स दो चीजें हम लोगों ने अच्छे से सीखा है. ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंपल पास्ट, ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंपल पास्ट, मैं V2 फॉर्म यूज करूंगा विच इज वेंट, राइट. V1, V2 एंड V3 में go, went and gone. Okay, one more we'll take do, did and done. Okay, I will use the V2 form for a simple past tense. Okay, I went to the market, but what is a rule? Rule says it definitely should be attached with a time. Okay, last week, कुछ भी. ओके, सम टाइम रेफरेंस मस्ट बी देयर. कुछ ना कुछ तो आपको टाइम रेफरेंस यहाँ पे देना पड़ेगा. ओके, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट the other statement where I am using have, has and had, I would say the same statement will be written as I have gone to the market. Okay, और अगर मैंने यहाँ पे last week लिख दिया then this will become wrong. ये wrong हो जाएगा. So when I am using what you say V3 form, जब मैं V3 form use कर रहा हूँ, I should not give the time reference. Or you can just understand whenever there is have, has and had. Okay, जब भी आप have, has और had use करते हो उसके साथ time reference नहीं देना because the usage is only that. ये क्यों दिया जाता है? So that you tell the time. Okay, time बताने के लिए already use किया है. उसके बाद अगर आप फिर से time बता रहे हो then it is of no use. उसका purpose ही खराब हो जाएगा. That is the reason this is wrong. Okay, और सिंपल प्रेजेंट को अगर सिंपल पास्ट को अगर सही बनाना है तो डेफिनेटली एक टाइम रेफरेंस देना है. ओके, अदरवाइज इट विल बिकम रॉन्ग. ओके, दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू. अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं दो स्टेटमेंट लिखता हूं, लेट्स से my grandfather has gone to Chennai and my grandfather had gone to Chennai. Now the most important question here is इन दोनों में कौन सा स्टेटमेंट सही है? Okay, which of these two statements are right? Okay, अकॉर्डिंग टू मी बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर राइट. दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है. ओके, दोनों का डिफरेंस इज देयर मीनिंग ओनली. मेरे को यहाँ पे हैज से एक चीज समझ में आएगा, हैड से एक चीज समझ में आएगा, एंड दैट इज व्हाट विल टेल यू कि आपको कब क्या यूज करना चाहिए. ओके, नाउ इफ आई एम सेइंग माय ग्रैंडफादर हैज गॉन टू चेन्नई, ओके, इसका मतलब ये है कि मेरे ग्रैंडफादर चेन्नई को गए हैं लेकिन वो वापस नहीं आए. ही इज स्टिल देयर. सो दिस पर्टिकुलर एक्शन हैज सम रेफरेंस टू द प्रेजेंट. इसका कुछ ना कुछ प्रेजेंट से एक रेफरेंस है, इसीलिए मैं इसको हैज यूज करूंगा. सो दैट इफ आई टेल समबडी दैट माय ग्रैंडफादर हैज गॉन टू चेन्नई विदाउट मी टेलिंग वेदर दे हैव कम बैक और नॉट, मैंने बता दिया कि वो चेन्नई तो गए थे लेकिन वापस नहीं आए बिकॉज देयर इज सम रेफरेंस टू द प्रेजेंट. इसीलिए ये हम लोग हैज गॉन यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे. ओके, नाउ इफ आई हैव टू डिफरेंशिएट सो दैट बिफोर दैट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट is a differentiation of has, have and had. इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ओके, व्हेन आई टॉक अबाउट हैज इट इज प्रेजेंट, राइट. ये भी प्रेजेंट है, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड दिस इज पास्ट. ओके, नाउ इन दोनों का डिफरेंस क्या है? ये दोनों प्रेजेंट ही है, बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट ओनली, बट व्हाट इज द डिफरेंस? नाउ दिस इज समथिंग व्हिच आई यूज फॉर सिंगुलर. ये सिंगुलर के लिए मैं यूज करता हूँ एंड दिस इज फॉर प्लूरल. ओके, मल्टीपल पीपल के लिए मैं हैव यूज करूंगा. ओके, एंड फॉर सिंगुलर आई विल यूज हैज. फॉर एग्जांपल ही हैज. ओके, दे हैव, बहुत सारे लोग हैं, दे हैव, वन पर्सन, ही हैज. बट देयर इज एन एक्सेप्शन फॉर दिस. इसके लिए एक एक्सेप्शन है. एंड व्हाट इज द एक्सेप्शन? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ये तो आपको पता ही होगा. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आई वुड ऑलवेज से आई हैव. ओके, मैं कभी भी आई हैज नहीं बोलूंगा, आई विल ऑलवेज से आई हैव. ओके, इसका मतलब ये क्यों होता है हम लोग देखेंगे बाद में. एंड यू हैव, यू के लिए भी हम लोग हमेशा यू हैव बोलेंगे, वी विल नॉट से यू हैज. दीज आर द टू एक्सेप्शन. इवन दो
ओके आई का मतलब सिंगुलर ही है, मैं एक ही बंदा हूँ, बट स्टिल आई विल ऑलवेज यूज हैव. यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड दैट इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट इज ए रिस्पेक्ट की तरह हो सकता है. ओके अगर मैं बोलूँ हम, मैं अकेला हूँ लेकिन हम बोल रहा हूँ, ओके तो उसको आप ऐसे समझ सकते हो. आई ओके के साथ हमेशा हैव यूज करेंगे. एंड व्हाट अबाउट यू हैव. सी व्हेन यू आर सेइंग यू, मेरे को ये नहीं मालूम वेदर इट इज आई एम रेफरिंग टू वन पर्सन और मल्टीपल पीपल. क्या मैं एक बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ या बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, ये मेरे को पता नहीं. अगर वन पर्सन इज देयर आई विल से यू, बहुत सारे हैं आई विल स्टिल से यू. तो बिकॉज पता नहीं है तो दोनों को मिला के दे हैव यूज्ड हैव, प्लूरली यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पता नहीं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है. ओके एंड आई हैव, आई के लिए हमेशा हैव होगा. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन ओनली देयर इज अ डिफरेंस. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन दैट he has, he she has or they have, then only there is a difference between कि ये have use होगा या has use होगा. Okay and had is for both singular and plural for the past. past के लिए okay had use करेंगे, it is for both singular and plural. I hope ये आपको समझ में आ गया होगा. once this you have understood, आपको थोड़ा बहुत ये समझने में थोड़ा अभी easy हो जाएगा. Did you all get this one? And because if I'm talking about my grandfather, जो थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन है, मैं इसीलिए वहां पे हैज यूज कर रहा हूँ. एंड बिकॉज इट्स सिंगुलर मैं हैज यूज कर रहा हूँ. आई होप एवरी वन ऑफ यू गॉट दिस. एंड ये दोनों का डिफरेंस क्या है? ये दोनों का डिफरेंस ये है दैट इफ माई ग्रैंडफादर वेंट टू चेन्नई फॉर सम वर्क, ओके एंड ही हैज नॉट फिनिश दैट वर्क, वो काम खत्म नहीं हुआ, वो वापस नहीं आया अभी तक, आई वुड से माई ग्रैंडफादर हैज गॉन टू चेन्नई. लेट्स से माय ग्रैंडफादर चेन्नई को गए और उनका काम खत्म हो गया, वो वापस आ गए. ओके आई वुड से माय ग्रैंडफादर हैड गॉन टू चेन्नई. सो व्हेन आई से दिस स्टेटमेंट ओनली, पीपल विल अंडरस्टैंड कि ये व्हाट यू से ये काम खत्म हो गया है या नहीं खत्म हो गया. ओके दिस इज व्हाट वी विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वन. डिड यू ऑल गेट दिस वन? ओके नाउ और एक चीज है, अगर एग्जाम में, सर एग्जाम में अगर ये दोनों स्टेटमेंट दिया है, मेरे को हैज यूज करना है कि हैव यूज करना है. ओके दैट्स व्हाट यू मे आस्क. अगर एग्जाम में ऐसा कोई स्टेटमेंट है और अगर मेरे को फिल करना पड़ रहा है, ओके तो ये यहाँ पे हैव आएगा कि सॉरी हैज आएगा कि हैड आएगा, हैज आएगा या हैड आएगा, ये दोनों में से कौन सा आएगा? दैट डाउट यू कैन हैव. सी until and unless you have some reference कि काम completely खत्म हो गया है, okay, until and unless some reference is there, okay, तो अगर वो रेफरेंस आपको नहीं मालूम है फ्रॉम द स्टेटमेंट, यू शुड नेवर थिंक दैट द वर्क इज कंप्लीटली डन. ये आपको नहीं समझना है. ऑलवेज यू शुड टेक दिस वन ओनली. हमेशा उसको प्रेजेंट से ही रिलेट करना है. ओके काम खत्म हुआ नहीं खत्म हुआ हमको मालूम नहीं है, दे हैव जस्ट टोल्ड हो गए थे. ओके इसका मतलब ये नहीं कि आ गए होंगे, जरूरी नहीं. So you will always take the reference of the present whenever you don't know whether the work is completely done or not. So कोई यहाँ पे डाउट रखने का जरूरत नहीं है. ओके सो बट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि ये दोनों स्टेटमेंट्स का मीनिंग क्या होगा. एंड इफ आई हैव टू गिव इन टर्म्स ऑफ टेंसेस, ये होगा हमारा ओके प्रेजेंट परफेक्ट, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट एंड दिस इज पास्ट परफेक्ट. Okay, one of them is present perfect and one of them is past perfect. लेकिन even though we are saying present perfect only, this is the event which has happened in the past. ये past में हुआ event है, but it has got some connection to the present. Present में इसका कोई connection है, इसीलिए ये present perfect बन गया है. Did you all get this one? This is the event which has happened in the past only. लेकिन उसका present से भी connection है, इसीलिए ये present perfect बना है. Okay, and what is past perfect? Something which has happened in the past, ended in the past, done and dusted. उसका कोई reference नहीं है present से, then only you would say that. Okay, I hope you have got the difference. अभी मैं थोड़े examples आपको दिखाऊंगा so that you understand कि ये दोनों का difference कैसे होगा, एग्जाम में शायद आपको कैसे आ सकता है उसको आप समझ सकते. Alright, let's see. We'll see some of the examples for पास्ट परफेक्ट टेंस. इसका एग्जाम्पल देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ डज दिस वर्क. ओके नाउ कोरा एंड जिल हैड वर्कड टुगेदर फॉर इयर्स बिफोर दे बिकेम फ्रेंड्स. ओके नाउ दे आर सेइंग बिफोर दिस इवेंट, ओके दिस हैज हैपेंड.
कोरा एंड जिल हैड वर्क टुगेदर फॉर ईयर्स बिफोर दिस, मतलब अगर कोई इवेंट इससे पहले हुआ है दैट मीन्स वो तो कंप्लीट हो गया होगा. इफ सम इवेंट हैज हैपेंड बिफोर समथिंग, definitely it is over. So here I have the reference to say कि there was a work which is over. इसीलिए हम लोग यहाँ पे has नहीं यूज करेंगे, I will use had. Okay, so Cora and Jill had worked together for years before they became friends. Okay, तो ये आपको समझ में आ गया होगा. Second one, when I got home, I realized I had left my keys at the office. Right, तो when I got home, I realized that I had left my keys at the office. तो ये तो पहले ही हुआ है. Okay, after that you reached home. Okay, you left the office before only and later on you came home. इसका मतलब ये है leaving the keys, that event has happened before only definitely. So I would say it is had. Okay, so this event of leaving the keys is completely done. Okay, इसीलिए हम लोग यहाँ पे had use कर रहे हैं. All right, next one. Nobody noticed that the chef had burned the keys. Sorry, burned the turkey. Okay. Nobody noticed that the chef had burned the turkey. ठीक है. यहाँ पे noticed बोल के आ रहा है. This is a keyword because of which मैं यहाँ पे had लगाऊंगा. Okay. किसी ने ये notice नहीं किया कि the chef has burned the turkey. That is what it is saying. तो अगर कोई notice कर रहा है, कब नोटिस करेगा? When the event is completely done. Okay, तभी तो नोटिस करेगा. Okay, they are saying it is burnt. तो ये कीवर्ड और ये कीवर्ड की वजह से मैं यहाँ पे had यूज करूंगा. That is why I would understand that that work is completely over. Okay, next one. If you had asked me, I would have picked you up. Okay, now if you had asked me, I would have picked you up. तो अगर आपने मेरे को पूछा होता तो मैं आपको पिक कर लेता. That is what it is saying. Okay, so I would have picked you up. तो अगर पहले ही पूछा होता, if you had completed this one or asking before only, पहले ही वो अगर खत्म हो गया होता, then I would have picked you up. तो ये इवेंट बाद में है और asking पहले होना चाहिए था. That is the reason it has to be had. I hope you understood कि यहाँ पे had क्यों यूज किया गया है. Okay, so if the event is completely done and there is some reference to tell that the event is done, okay, then I would say it is had. अगर ऐसा कोई reference नहीं है, then I would use has. Okay, तो हम लोग वो एक example लेंगे. Let's see. Present का भी हम एक example लेंगे. Okay. Now here you can see. देखो, Raj has just gone out of the market. Raj has just gone out to the market. यहाँ पे वो मार्केट को तो गए हैं, वापस आए कि नहीं, whether that event is completely done, that I don't know. Okay, that is the reason I will use has here. मैं यहाँ पे has use करूँगा because this event I don't know whether it is completely done or not. Second one, the clock has just struck 12. Okay, now because I am talking about something which has just happened, अभी हुआ है ना, so this particular one has a reference to the present. ये present के लिए एक reference है that the clock has just struck 12. अभी हुआ है, तो ये present में क्योंकि हुआ है, that is the reason I would use has. Okay, next, we have gone for a walk. Okay, हम walk के लिए गए थे. Okay, तो बस उतना ही दिया है. Okay, we don't know came back or not, whatever it is. Let's say somebody has called और मैं walk में हूँ. Okay, तो हम लोग शायद मैं ऐसा बोलूँगा कि we have gone for a walk. Okay, ऐसा शायद बोलेंगे. And this doesn't what you say tell कि whether we have came back from the walk or not. इसीलिए ये present के लिए reference है. That is the reason I will use have. And because it is plural, I am using have. Right? Now Toby has eaten all the cookies. Toby has eaten all the cookies. Okay, ये मैं explain करूँगा आपको why it is has. Now you would say if he has eaten all the cookies, वो खत्म हो गया होगा, मतलब वो इवेंट खत्म हो गया होगा, तो वहाँ पे तो had आना चाहिए. Okay, I will explain that. Right, my mother has cut her fingers. Okay, sorry, my mother has cut her finger. Okay, तो हाँ, all right. Now, how can I say here it is has and here it is has? मेरे को तो लग रहा है Toby has eaten all the cookies, मतलब खा लिया. It should be had क्योंकि
something which has happened in the past. Okay, now you need to understand that if anything has a reference to the present, okay, अगर किसी चीज का भी present से कोई reference है, okay, you always have to understand that it is going to be has. Okay, now यहाँ पे present का क्या reference? Okay, now for example I am talking about food. Okay, food is something which is recurring. Okay, food is something which is recurring. मतलब अगर मैंने अभी food खाया, बाद में भी खा सकता हूँ, उसके बाद भी खा सकता हूँ, ये एक recurring event है. ये कोई what you say एक defined event नहीं है. Okay, कि इस टाइम पे किया खत्म हो गया, ऐसा नहीं है. So this is something which is recurring. तो ये past में भी हुआ है, शायद ये present में हो रहा है, शायद ये future में भी हो सकता है. So it has got some reference to the present. Okay, even though it has happened in the past only, past में ही खत्म हुआ, लेकिन it has got some reference to the present. That is the reason it has eaten all the cookies. Okay, now I will give you one example so that you understand this one better. Okay, I would say, see, I have had my breakfast. Okay, I had my breakfast. These are the two examples I am giving. I have had my breakfast. I had my breakfast. Okay, ये दोनों में कौन सा सही है? दोनों सही है. Both of them are actually right. Okay, now what is the difference between these two? इन दोनों का meaning में क्या difference है? Now यहाँ पे अगर हम देखें तो one of them is have and one of them is had. Is it allowed to write like this? It is allowed to write like this. यहाँ पे one of the had, okay, this had जो है ये eating के लिए symbolize कर रहा है. This had, okay, ये जो had use किया है वो लोगों ने, ये किसके लिए use किया है? To eat. I had my breakfast. उसका मतलब क्या है? मैंने breakfast खाया है. तो ये had जो है that is for symbolizing कि वो खाया है. Okay. What about this one? ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है. ये क्यों हेल्प कर रहे हैं? ओके, सो दैट इट हैज गॉट सम टेंस. ओके, इसको टेंस देना है, इसीलिए ये यूज कर रहे हैं. राइट, बिकॉज आई कैनॉट यूज आई हैड माई ब्रेकफास्ट. इफ आई से आई हैड माई ब्रेकफास्ट, इसका मतलब ये है कि ये एक सिंपल पास्ट टेंस है एंड आई हैव टू टेल द टाइम ऑल्सो. ओके, इफ आई से आई हैड माई ब्रेकफास्ट, इसका ये मतलब है that I am using a simple past tense, okay, and along with the simple past tense I should definitely tell the time. तो ये गलत हो जाएगा. Okay, now here in this case along with this had which is V3 form, if I am using this one have and had, तो ये अभी सही हो जाएगा because I am not allowed to do this. Correct? ठीक है. So I have had my breakfast, I had my breakfast. इन दोनों का मीनिंग ये है. Okay, अच्छे से समझो. For example, if I talk or ask somebody कि आज आपने ब्रेकफास्ट खाया क्या? Did you have your breakfast? So I am specifically asking them about today's breakfast. आज के ब्रेकफास्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. Now he will say I had my breakfast क्योंकि उसने आज का ब्रेकफास्ट खत्म कर दिया. He has completed today's breakfast and today's breakfast is never going to complete again. वो फिर से आज का ब्रेकफास्ट कभी भी नहीं खाएगा. Okay. Now let's say I am generally talking about breakfast. अगर breakfast के बारे में generally बोल रहा हूँ, I will say I have had my breakfast. इसका मतलब ये है कि आज मैंने breakfast खाया है, मैं कल भी खा सकता हूँ, परसों भी खा सकता हूँ. So there is a reference to the present. Okay, present में उसका एक reference है कि आज के लिए तो मैंने खा लिया, लेकिन कल भी खा सकता हूँ, परसों भी खा सकता हूँ. This is a recurring event. जब भी हम कोई रिकरिंग इवेंट के बारे में बात करते हैं, वहां पे हम लोग हैज यूज करते हैं. ओके, देयर वी यूज हैज. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दैट वन. ओके, तो रिकरिंग इवेंट्स में हम लोग हैज यूज करते हैं, बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट इवेंट व्हिच हैज कंप्लीटली हैपेंड, डन, हम लोग हैड यूज करते हैं. इफ समबडी इज आस्किंग मी अबाउट व्हाट अबाउट टुडेज ब्रेकफास्ट, आई विल से आई हैड माय ब्रेकफास्ट. इसका मतलब ये है आज का ब्रेकफास्ट मैंने खा लिया और आज का ब्रेकफास्ट आई विल नेवर हैव अगेन. आज का ब्रेकफास्ट मैं फिर से कभी नहीं खाऊंगा. दैट इज व्हाट इट मीन्स. बट इफ आई एम जनरली टॉकिंग अबाउट ब्रेकफास्ट, आज का नहीं, कभी भी,
आई विल से आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज भी खाऊंगा, कल भी खाऊंगा, परसों भी खाऊंगा. देयर इज सम रेफरेंस टू द प्रेजेंट. ओके, तो यहाँ पे इट इज, व्हेन आई से हैज, इट डजंट मीन इट इज प्रेजेंट. इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रेजेंट है, क्योंकि द क्लॉक हैज जस्ट स्ट्रक 12, मतलब ये इवेंट तो खत्म हो गया. ओके, it only means that it has got some reference to the present. present में इसका कोई reference है बस. ओके, ये present नहीं है. this is what you need to understand. आपको ये चीज समझना है अच्छे से. ओके, that is the reason Toby has eaten all the cookies, मतलब ये generally eating के बारे में बता रहा है. ओके, ये फिर से recurring event है. ओके, now this one, my mother has cut her fingers. ओके, इसका ये मतलब है कि ये फिर से हो सकता है, राइट. ओके, ये फिर से हो सकता है. तो दैट इज द रीजन व्हेन इट इज रिकरिंग आई विल यूज हैज. ओके, नाउ ऑल दीज थिंग्स आर रिकरिंग इवेंट्स. यहाँ पे ये रिकरिंग इवेंट तो नहीं है, बट बिकॉज इट हैज जस्ट हैपेंड, ओके, बिकॉज ऑफ दिस कीवर्ड इट हैज बिकम सम रेफरेंस टू द, इट हैज गॉट सम रेफरेंस टू द प्रेजेंट. ओके, यहाँ पे भी ऐसा ही है, जस्ट यूज किया है. ओके, दैट इज व्हाई इट इज लाइक दैट. ओके, नाउ हियर कुछ यूज नहीं किया है, बट दे हैव गॉन फॉर समथिंग, डजंट नो वेदर दे विल कम बैक और नॉट. ओके, यहाँ पे इट इज अ रिकरिंग इवेंट एंड हियर इट इज अ रिकरिंग इवेंट, मतलब फिर से भी ये हो सकता है. ओके, नाउ व्हाट इज नॉट रिकरिंग इज समथिंग व्हिच वी हैव सीन बिफोर. हम लोगों ने पहले जैसे वो देखा था, ओके, उसके हिसाब से वो नॉन रिकरिंग है. ओके, वो स्लाइड हम लोग और एक बार देखते हैं. ओके, one second. Okay. Cora and Jill had worked together for years before they became friends. Now, before they became friends, okay, already they have worked together. Now, can they work together again before they become friends? एक बार हो गया, अब वो ये चीज फिर से नहीं हो सकता है ना. सो बिफोर दे बिकम फ्रेंड्स, उन लोगों ने एक बार काम किया. नाउ बिफोर दे बिकम फ्रेंड्स, अब दूसरे बार तो काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो इवेंट हो गया, ऑलरेडी वो लोग फ्रेंड्स बन गए. सो दिस कैन नॉट बी अ रिकरिंग इवेंट, दैट इज व्हाई इट इज हैड. आई होप यू अंडरस्टूड नाउ. ओके, व्हेन आई गॉट होम आई रियलाइज्ड दैट आई हैड लेफ्ट माय कीज. ऑलरेडी रियलाइज कर लिया है. रियलाइज कर लिया तो क्या पता चला, दैट आई हैड लेफ्ट माय कीज. अब फिर से मैं कीज भूल नहीं सकता हूं ना, बिकॉज आई ऑलरेडी रियलाइज्ड. तो वो इवेंट, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस रियलाइज्ड, वो इवेंट फिर से नहीं होगा, राइट. नेक्स्ट वन, नोबडी नोटिस दैट द शेफ हैड बर्न्ड द टर्की. तो ये नोटिस्ड के पहले ये बर्न हो गया है, अब नहीं होगा. ओके, इट विल नॉट हैपन अगेन. नेक्स्ट, इफ यू हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव पिक्ड यू. ओके, अब तो पिक नहीं किया. ओके, अब ये इवेंट, ये जो इवेंट के बारे में बात कर रहे हो, आस्किंग, अब तो पूछ नहीं सकते हो. दिस इवेंट कैन नॉट हैपन नो. दैट इज द रीजन इट इज हैड. ओके, दैट इज द रीजन इट इज. डिड यू ऑल गेट दिस वन? ओके, नाउ यहां पे अगर आप देखोगे, आई वुड हैव पिक्ड यू अप, यहां पे हैव यूज किया है ना, यहां पे तो हैव यूज किया. इसका मतलब क्या है, दैट दिस इज अ रिकरिंग वन. ओके, पिकिंग, मैं अभी भी तुमको पिक कर सकता हूं, बाद में भी पिक कर सकता हूं, कभी भी पिक कर सकता हूं. लेकिन ये पिकिंग करने से पहले, ओके, फॉर दिस इवेंट ऑफ पिकिंग, ओके, बिफोर दैट यू हैड टू आस्क मी, यू डिडंट आस्क मी, आपने पूछा नहीं. ओके, और वो खत्म हो गया तब के लिए. ओके, वो इवेंट तब का तभी खत्म हो गया. दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. आई होप इट इज क्लियर फॉर यू. ऑलराइट, ठीक है. नेक्स्ट वन, सो वी हैव लर्न्ड टिल नाउ, हम लोगों ने 3 चीजें सीखा है. वन इज सिंपल पास्ट. ओके, बाकी का बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा. सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट.
These are the three things we have learned. Okay, simple past, past perfect and present perfect. What is the rule for simple past? You have to use the time reference. Okay, what is the rule for these two? ये रूल ये है कि यहाँ पे हम लोग टाइम रेफरेंस नहीं यूज करते. ओके, विदाउट यूजिंग टाइम रेफरेंस व्हाट वी आर टेकिंग हियर, यहाँ पे हम लोग V3 फॉर्म यूज करते हैं along with a helping verb which can be has, have और had. has, have और had के साथ एक V3 फॉर्म हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे और टाइम रेफरेंस नहीं देते. ओके, यू शुड नॉट गिव द टाइम रेफरेंस बिकॉज अदरवाइज देयर इज नो पर्पस ऑफ यूजिंग इट. इसको यूज करने का कोई पर्पस ही नहीं रहेगा, इसीलिए हम लोग नहीं यूज करते. ओके, एंड इसमें इफ देयर इज एनी रेफरेंस टू द प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा. आप लोग हैज नहीं तो हैव यूज करोगे. इफ देयर इज नो रेफरेंस टू द प्रेजेंट यू विल यूज हैड. दैट्स इट. ओके, नेक्स्ट वाले बहुत इजीली आपको थोड़ा जल्दी हो जाएगा. ओके, आज हम लोग प्रेजेंट और पास्ट का पूरा कंप्लीट करेंगे, फ्यूचर का नहीं करेंगे बिकॉज इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट एंड यू कैन ऑटोमेटिकली फिगर इट आउट. नॉट दैट आई विल लीव, लेकिन मैं जब क्वेश्चंस कर रहे हैं ओके उनके साथ ये कंप्लीट कर दूंगा. ओके, राइट. तो विल क्विकली कंप्लीट दिस वन. ऑलराइट, नेक्स्ट वन आई विल राइट 2 स्टेटमेंट्स. आई हैड बीन वर्किंग in ABC for 5 years. I have been working in ABC for 5 years. Okay, यहाँ पे एक ही डिफरेंस है. Here I am using had been and here I am using have been. Okay, now if I have to segregate it in terms of tenses, I would say it is past perfect continuous. Okay, and this one is present perfect continuous. Okay, past perfect continuous, present perfect continuous, यहाँ पे हम लोग खत्म करेंगे. Now what is the difference between these two? It means that somewhere in the past, okay, somewhere in the past had been working, somewhere in the past what you say, I started working with ABC. नहीं, somewhere in the past हम लोग ABC से start करें काम करना and I have worked for 5 years. 5 साल वहाँ पे काम किया और वो काम छोड़ दिया. Right now I am not associated with that particular company. Okay, somewhere in the past I started working with them, I worked for 5 years, I left it, I am no longer associated. That particular work is done and dusted. I would say I had been working in ABC company for 5 years. Okay, now in this second one I would say I have been working in ABC company for 5 years. It means before 5 years I started. Okay, यहाँ पे हमको पता है कि कब start किया. Before 5 years I started working and right now it is 5 years and I am still associated with that particular company. मैं अभी भी उस company में काम कर रहा हूँ. I would say I have been working in ABC company for 5 years. Okay, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है. Okay, this is the difference between these two. ये बहुत सिंपल है एक्चुअली. Okay, बहुत सिंपल है. You just have to understand कि यहाँ पे क्या हो रहा है. राइट, तो इसका मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे दूंगा. ओके, एंड देन इट इज डन. ये खत्म हो गया है एक्चुअली. ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. I have been living in this house for 40 years. 40 साल से यही घर में हूँ, मतलब अभी भी हूँ. ओके, I have been climbing up this mountain for over 2 hours. मतलब अभी भी कर रहा. Right. I have been waiting for you since 10 a.m. I have been thinking about you since you called. Okay. He has been singing for 2 hours. Now यहाँ पे आप ये सोचोगे कि यहाँ पे मैं had been क्यों नहीं यूज कर सकता हूँ. ओके, why I cannot use had been here? The only reason why you cannot use had been here is because मेरे पास यहाँ पे कोई proof नहीं है. I don't have any proof here to say, okay, to say कि that particular work is completed. मैं वो घर से निकल गया. Okay, I am not in that house right now. ऐसा कोई proof नहीं है. That is the reason I have to use have been. That's it. Okay, क्योंकि उसका प्रेजेंट में कनेक्शन क्यों है? क्योंकि ये काम खत्म हो गया ऐसा हमको नहीं मालूम. वी डोंट नो वेदर दैट वर्क इज कंप्लीटली डन और नॉट. आई डोंट नो वेदर आई हैव फिनिश्ड क्लाइंबिंग.
मैंने क्लाइम करना बंद कर दिया, नहीं मालूम मेरे को, देयर इज नो प्रूफ इन दिस. ओके, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 10 AM. ओके, मैं 10 AM से मैं वेट कर रहा हूँ, ये काम खत्म हो गया, ये हमको अभी तक नहीं मालूम है. सो देयर इज नो प्रूफ फॉर दिस. ओके, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू, ही इज बीन सिंगिंग फॉर 2 hours. नाउ व्हेन इट कम्स टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो प्रूफ आपको मिल जाएगा. ओके, यू विल गेट दैट प्रूफ. फ्रॉम दैट यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हैड बीन यूज करना चाहिए था, और जब प्रूफ नहीं है आई विल यूज हैज बीन एंड हैव बीन. हैव बीन यूज करूंगा, नहीं तो हैज बीन यूज करूंगा. ओके, आई है तो आई हैव बीन, ही इज बीन. ओके, ये ही हैज बीन है. ओके, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, और डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर. ऑलराइट. ओके, तो पास्ट भी एक बार हम लोग खत्म करते हैं. लेट्स सी पास्ट परफेक्ट. ओके, नाउ ये बाद में देखते हैं. ओके, वी विल सी दिस लेटर. We had been trying to open the door for 5 minutes when Jane found her keys. Okay, यहाँ पे जब ये इवेंट हुआ, okay, हम लोग ये इवेंट होने से पहले we had been trying to open the door for 5 minutes. Okay, ये इवेंट जब हो रहा था उसके टाइम पे, that is the reason हम लोग यहाँ पे had been यूज करेंगे. Okay, and इसके टाइम पे हम लोग सर्च कर रहे थे, and this particular event is over. Why? Because when Jane found her keys, okay, she already found. तो ये event अगर हो गया है तो ये event भी definitely हो गया. That is the reason it is had been. Next one. I had been, okay, sorry, it had been raining hard for several hours and the streets were very wet. Okay, it had been raining hard for several hours and the streets were very wet. यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है एक्चुअली. ओके, बट बिकॉज ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, मतलब दीज आर नॉट एरर्स, राइट. ओके, ये आपके लिए एरर्स नहीं है. ओके, ये एक स्टेटमेंट है. उनका मतलब ये है कि व्हाट यू से, बहुत घंटों से रेन हो रहा था, अभी बंद हो गया. ओके, फ्रॉम मेनी आवर्स इट वाज रेनिंग, और ये अभी स्टॉप हो गया. ओके, तो इससे हमें ये पता चलता है. लेकिन अगर एग्जाम में ये आए, इफ यू गेट द सेम थिंग इन एग्जाम, यू शुड नॉट पुट हैड बीन हियर. आपको यहाँ पे हैज बीन लिखना है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है कि इट इज डन. ओके, विल रीड वंस अगेन टू चेक कोई रेफरेंस है कि नहीं. ओके, सो इट हैड बीन रेनिंग हार्ड फॉर सेवरल आवर्स एंड द स्ट्रीट्स वेर वेरी वेट. ओके, हाँ, तो यहाँ पे रेफरेंस दिया है. व्हाट इज द रेफरेंस? द स्ट्रीट्स वर वेरी वेट. द स्ट्रीट्स वर वेरी वेट मतलब पहले वेट थे, अभी नहीं है ना. ओके, अगर पहले वेट थे दैट मीन्स रेन तो कब का खत्म हो गया होगा. सो दिस इज अ रेफरेंस हियर. ओके, लेकिन अगर एक नॉर्मल स्टेटमेंट में रेफरेंस दिए बिना भी अगर किसी ने ये यूज किया है, ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू स्टेट इट. ओके, वो लोग अपने हिसाब से बता रहे, ओके, कि ये काम खत्म हो गया था, राइट. अगर आपको एग्जाम में ऐसा विदाउट रेफरेंस आए, यू कैन यूज हैव बीन और हैज बीन. ओके, अकॉर्डिंगली. If you get the reference only, you have to use had been. That's it. Okay. Next one. Her friends had been thinking of calling the police when she walked in. Okay. When she walked in is the reference and had been should be the answer. Okay. Now, abhi, what you say? Had you been waiting long before the taxi arrived? तो यहाँ पे रेफरेंस ये आएगा बिफोर द टैक्सी अराइव, एंड यहाँ पे हैड यू विल बी डन. ओके, हैड यू बीन वहाँ पे जस्टिफाई हो जाता है. तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दिस स्टेटमेंट्स. आई होप एवरीवन अंडरस्टूड. तो हमारा 5 टेंसेस खत्म हो गया है. ओके, 5 टेंसेस हो गया है. सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, और 2 टेंसेस और 3 टेंसेस है वो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं. दोज आर वेरी इजी वंस. ऑलराइट. पास्ट कंटिन्यूअस, दिस इज ओनली टू टेल दैट समथिंग वाज हैपनिंग इन द पास्ट. पास्ट में कुछ हो रहा था, दैट्स इट. ओके, पास्ट में कुछ हो रहा था बताने के लिए हम लोग ये यूज करेंगे. एंड एज आई टोल्ड, ओके, ऑलराइट, ठीक है, देखते हैं. It was snowing yesterday. It was snowing yesterday, right? They were eating at the restaurant.
they were eating at the restaurant. You were working yesterday. I was studying last night. I was waiting for the cab when I met Raj. ओके ये एक स्टेटमेंट है, शायद ये गलत स्टेटमेंट है बिकॉज यहाँ पे टाइम रेफरेंस उनको यूज करना था. ओके तो व्हेन दे वर टॉकिंग अबाउट सम इवेंट हैपनिंग इन द पास्ट, उनको यहाँ पे एक टाइम रेफरेंस यूज करना है. ओके दैट इज फॉर पास्ट कंटिन्यूअस ऑल्सो. ओके इट इज वेरी नेचुरल. अगर आप पास्ट में कुछ हुआ उसके बारे में बता रहे हो तो टाइम रेफरेंस डेफिनेटली आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे. ओके ठीक है. Why I have to use time reference? Okay, यहाँ पे time reference क्यों यूज करना पड़ेगा? Because here I am not using have, has or had. ये have, has और had, okay, जब भी मैं यूज करता हूँ only then time reference should not be there. Otherwise time reference तो यहाँ पे रहना चाहिए. यहाँ पे देखो it was snowing yesterday, यहाँ पे time reference है, यहाँ पे time reference है, last night time reference is there. Okay, I was waiting for the cab when I met Raj, that is a time reference यहाँ पे. तो सभी जगह देयर इज अ टाइम रेफरेंस. यहाँ पे टाइम रेफरेंस नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है. ओके ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि व्हेन आई यूज सिंपल व्हाट यू से कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टू टेल समथिंग वाज हैपनिंग इन द पास्ट. ओके मेरे को एक टाइम रेफरेंस देना है. ओके क्योंकि यहाँ पे हेल्प करने के लिए भी कोई वर्ब नहीं है, मेरे को पता नहीं है. ओके दैट इज द रीजन हमको करना है. राइट, आई होप यू अंडरस्टूड. सो 6 टेंसेस हो गया, ओनली 2 टेंसेस आर रिमेनिंग नाउ. Let's see present continuous tense. Present continuous tense. Okay. Now if something is happening now, okay, तो simple past क्या होता है? What is simple past? Simple past is not something which is happening now. जो अभी हो रहा है हम उसको simple past नहीं बोलेंगे, उसको हम present continuous बोलेंगे. We will call it as present continuous. अभी हो रहा है, so we will call it as present continuous. That is not सिंपल पास्ट. ओके ठीक है. ये देखते हैं. द चिल्ड्रन आर गोइंग टू द स्कूल. यहाँ पे टाइम रेफरेंस देने का जरूरत नहीं है बिकॉज ये अभी हो रहा है, इट इज हैपनिंग नाउ. ओके सो चिल्ड्रन आर गोइंग टू द स्कूल. ओके द बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क. द बेबी इज क्राइंग आउट लाउड. इट इज रेनिंग नाउ. आई एम कुकिंग पास्ता फॉर लंच. यहाँ पे कोई टाइम रेफरेंस जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स हैपनिंग. राइट ओके तो ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. For this you don't need time reference. Logical, इसको रूल की तरह मत देखो, इसको एक लॉजिक की तरह देखो. You will understand it better. Okay, I hope everyone understood. So all the things, okay, that are happening right now, okay, हम उसको present continuous लेंगे. Right now the last one which is left. Okay, ये एक बार देखते हैं. I go to gym 3 times a week. Okay, now this is something which I do regularly. जो मैं हर एक दिन करता रहता हूँ, frequently करता हूँ, recurring है. All those things are something which I call it as simple past. Okay, so something which I do frequently or daily. Okay, ये एक category हो गया, something which is frequent. Okay, one more category is something which is a universal fact. Okay, अगर कोई universal fact है तो वो भी एक simple present होगा. For example, the sun rises in the east. Okay, वो आज भी राइज होगा, कल भी राइज होगा. So that is a recurring event, right? वो हमेशा होता रहेगा. Okay, the water boils at 100 degrees. Okay, वो boils जो है that is simple past, right? Sorry, simple present. Okay, वो recurring event है. Okay, that is a recurring event. Something which is happening again and again, we call it as simple present. Okay, next. So I go to gym 3 times a week. We drink coffee at work. She loves her job. A lot of people work at home now. Okay. My favorite TV show starts at 8 o'clock. She finishes her work early on Fridays. She has a flat in the city. We don't eat meat. Okay. Now यहाँ पे देखो, ये go जो है that is V1 form which is simple. Okay. V1 form go है यहाँ पे. We drink coffee which is again V1 form. She loves, that is V1 form. Okay, simple past. A lot of people work, which is V1 form. Okay, my favorite TV show starts, which is V1 form. She finishes, okay, she finishes, which is V1 form, right?
शी हैज अ फ्लैट, यहाँ पे हैज देख के कंफ्यूज मत होना, आई विल टेल यू. ओके, शी हैज अ फ्लैट इन द सिटी सेंटर. वी डोंट ईट मीट. ओके, वी डोंट ईट मीट, ये दोनों V1 फॉर्म है. ओके, नाउ ऑल दिस आर V1 फॉर्म. V1 फॉर्म हम कब यूज करते हैं? फॉर ऑल द सिंपल प्रेजेंट वी यूज V1 फॉर्म. आई होप एवरी वन ऑफ यू गॉट दिस. ये हैज के बारे में हम लोग बात करते हैं. ओके, दिस हैज के बारे में हम लोग बात करते हैं, राइट. एंड वी विल क्लोज आवर सेशन हियर आफ्टर दिस. ओके, ये होने के बाद हम लोग सेशन क्लोज करेंगे. एंड अंडरस्टैंड गाइस, व्हाट यू से, इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस. ओके, प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हमको करना है डेफिनेटली, बिकॉज कॉन्सेप्ट से तो नहीं होगा. क्वेश्चंस रहेंगे तो रियल टाइम प्रॉब्लम्स कुछ आएगा. तो फॉर द प्रैक्टिस आई विल कीप अ सेपरेट सेशन आफ्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज ऑल्सो ओवर. सब्जेक्ट वर्ब और इसका मिला के एक प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट वी आर क्लोजिंग दिस हियर ओनली. ओके, वो हम लोग वहाँ पे क्लोज कर सकते हैं. ऑलराइट, ठीक है. नाउ व्हाट वी नीड टू सी, all right, let's see. Now, what is the first usage of have, hasn't, had? का first usage is, okay, it is helping verb. वो एक helping verb की तरह है. ओके, सेकेंड यूसेज इज पोजेशन. ये क्या है हम लोग बात करेंगे. थर्ड वन इज ईटिंग. थर्ड वन इज ईटिंग. दीज आर द थ्री यूसेजेस ऑफ हैव, हैज एंड हैड. तो उसमें से एक हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट किया, विच इज हेल्पिंग वर्ब. ओके, उसके बारे में हम लोगों ने पूरा देखा. द होल टेंसेस डिपेंड्स ऑन दिस हैव, हैज एंड हैड. इसके ऊपर ही पूरा टॉपिक बना. ओके, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ. नाउ सेकंड वन विच इज अ पोजेशन. पोजेशन मीन्स अगर मेरे पास कार है, ओके, आई विल से आई हैव अ कार. तो उसका ये ग्रामेटिकल मीनिंग नहीं है, इसका यही मीनिंग है कि वो कार मेरे पास है, बस उतना ही. ओके, इट इज जस्ट टू टेल दैट आई ओन समथिंग. मैं कुछ ओन कर रहा हूँ, ये बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं हैव, हैज और हैड. इट इज नॉट ग्रामेटिकल टर्म और हेल्पिंग वर्ब. ये बस इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई ओन समथिंग, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं. सो आई हैव अ कार, आई हैड अ कार, ही हैज अ कार, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर, प्लूरल और पास्ट एंड प्रेजेंट. ओके, सो इफ आई से ही हैड अ कार, पहले था अभी नहीं है. ही हैज अ कार, अभी है. आई हैव अ कार, अभी है. आई हैड अ कार, पहले था. दैट्स इट. ओके, देयर इज नो डिफरेंस इन दिस वन. ओके, नाउ what is one error which you can do? यहाँ पे आप कौन सा गलती कर सकते हो? If I say I am having a car, okay, if I say I am having a car, this is wrong. Okay, इसका literal meaning ये है कि आप कार को खा रहे हो. You are eating the car. That is what it means. Okay, having का कोई और meaning नहीं है. When you possess something, it is never in the continuous form. It is never in the continuous form. It is either you have it or you had it. Okay, ये बीच वाला having वाला का कुछ पोजीशन नहीं होता है. Okay, the direct meaning of this is eating. Okay, ing अगर आप लगा रहे हो, उसका ये मतलब है आप खा रहे हो कार को. Okay, so this is a second usage of it, and this is not allowed. ing form is not allowed. Now the third one is eating. Okay, I had my breakfast. He had his breakfast. She had her breakfast. They had their breakfast. Okay. So third, what you say, third one is eating. Okay. और वो आपको समझ में आया होगा. And if I'm eating right now, अगर मैं अभी खा रहा हूँ, I will say I'm having my breakfast. मैं अभी मेरा breakfast खा रहा हूँ. That is what it means. Only for eating, I can use ing. Okay. Having और कहीं नहीं होगा other than eating. Other than eating, having का कुछ और मीनिंग नहीं होगा. Did you all get this one? Okay, यहाँ पे भी कहीं और ing नहीं आएगा. Here also you will never get ing. The only where you will get ing for have is
while eating. This is the what you say the usage of have, hasn't, had. Okay, I hope you understood this session. हमारा next session okay बहुत जल्दी हम लोग वो भी अपलोड कर देंगे. We'll meet next time. Thank you so much. Bye bye.